जी सब गुड आफ्टरनून सबको. Very good afternoon. How are Good you? afternoon, Happy ma'am. Dashera. Good afternoon. Happy Dashera. Happy Dashera. Happy Happy Dashera. Happy Happy Dasara Dashera. to me and everybody else in the group. Thank you. Yeah. Hello Geeta ji. Good So afternoon. happy Dasara. Thank you. Same to you. Yeah. Happy Dashera to all. Chalo, in the meanwhile let people join. I'll start. Okay. So Sanskriti, we can start the recording. Yeah. Hello Reena ji. Yes, ma'am, I've started. Yeah. She always comes with a sweet smile. Yeah. Happy Dashera. Okay. So let me start sharing my screen. Okay. Once again, happy Dashera. Namaste. And welcome to Get Set Up. I'll share my screen. Okay. So today's topic is, most of us would love to hear about the simple diets for well-being. And I'm your guide Bhavani Swaminathan from Mumbai, nutritionist and holistic wellness coach. About Get Set Up. Get Set Up helps you learn useful skills from people like you so that you can do wonderful things. The best way to participate in this class is to have your camera on, ask questions and share your experiences. If joining by live stream, the best way to participate is to join us and register for a class. Get Set Up is not paid to promote specific products. And Nutrition Hour is daily, Monday to Friday, it's 3 p.m. and on Saturday and Sunday, it's at 11 a.m. Today's agenda is know the relationship between psychology of food and good health, explore a diet that addresses your concern, and understand how to make food nectar. And it is always recommended to check your doctor prior including any new diet foods into your regular diet plan, especially if you have any health condition or are taking any medications. Nothing stated or mentioned in this program should be taken as medical advice or should replace medical care. So let us begin with the nutrition hour. Okay. So simple diet for well-being. Okay. Now, before we start this topic, let me ask you this question. How many of you are ready to listen that Bhavani is going to come up with some new diet scheme? तो जिसको हम लोग इतने टाइम से तो we are following Ashgord juice, we are doing this and that and also अभी something new we'll get to know. And उससे let us see that whether there's any improvement in the health. If you have thought of this when you saw the topic while booking for the class, so just give a thumbs up or put it on the chat. Yes, जरा मैं देखूं कितने लोग yes कहते हैं. Okay. कि अगर आप लोग सोच के आए कि आज कुछ नया डाइट चार्ट मिलने वाला है दशहरा वाले दिन. हैप्पी दशहरा टू ऑल. दशहरा का दिन है, सो 9 days हो गया. सम पीपल माइट हैव डन देयर फास्टिंग और कुछ लोगों ने फास्ट जिन्होंने नहीं किया होगा तो दबा के बहुत सारी मिठाइयां खाई होगी. तो आप सोच रहे होंगे कि दिवाली के पहले तक थोड़ा सा अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर ले विद अ न्यू डाइट शेड्यूल. And then again in Diwali we'll start eating all those kind of stuff करके. So ऐसा आप सोच के आए हो you are going to get a very new kind of diet today. Please thumbs up करिए एक बार अगर ऐसा सोचा है तो. अगर नहीं सोचा है तो no problem. Okay. चलो मतलब आप लोगों ने नहीं सोचा है कि नया डाइट मिलने वाला है. Okay, good. That means you all are very intelligent and good students of mine. Okay. ठीक है. So before we talk about the simple diet for well-being, so I would like to share something, it's a story in the sense, it's a real incident. Okay, when we talk about technology and medical science, so always we have seen that Western countries are much ahead than us. I'm not मैं बुराई नहीं कर रही हूँ इंडिया की, but this is a fact. टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज आगे रहे हैं. एंड दिस इज अ रियल इंसिडेंट which happened in 1952. Okay, so there was a man in there was an American, his name was Mr. Wright. So he was suffering from cancer and cancer का last stage था and lumps मतलब उसके body में थे and pus was oozing out and it was clearly
seen, the doctors had mentioned that he is not going to survive for more than 2 weeks. Okay, why I'm telling you this is because this particular story, which the narration is associated with today's topic. So let us understand about diet and what I'm talking about right now. Okay, so this man, the doctor said ki it's just 2 more weeks. I mean, I'm sorry, we can't save you. So then this man was a little shattered, but he knew that he's not going to survive anymore, max to max 2 weeks. So it was a Friday morning. So he was reading newspaper. So newspaper mein he saw that there is a particular injection which has come up in the market, and it was mentioned in the paper that a cancer patient, when the cancer patient is given with this injection, there are 100% chances that the cancer will be reversed. I mean, the person will be free from cancer. Now, this man rushes to the doctor and says that I don't remember that wo kaun sa injection tha. So he says, today morning only I read in the newspaper that this particular injection has come up. तो आप मुझे please मुझे वो injection लगा दो, he said. Now the doctor said, yes, this is the new injection which has come up, but it is not for you. It is for those people who are in the first stage of cancer and whose survival rates are, chances are very high. So in your case, your age also is quite high. And plus the thing is your, chances are very less. It's the fourth stage. So there is no point in giving you, such expensive injection. But this man insisted, please give me. I know, he started pleading and begging and all. So doctor said, okay, fine. Then he thought, okay, fine, I'll give. So his doctor ne his patient ko, that is Mr. Wright ko, injection diya. Friday ki baat thi. And this man, he went home. Monday morning, this man, because Saturdays and Sundays, it's not like India, those people don't work. And Monday morning, this man rushed to the hospital. He went in front of the doctor. He stood in front of the doctor and बहुत खुशी खुशी उसने अपना shirt वर्ट निकाल के दिखाया, because on his body he had lot of lumps, and those lumps, from those lumps the pus was oozing out. So everything was normal, absolutely clear, no lump, nothing. The doctor was surprised, and then doctor ने फिर test कराया, and the test showed that he did not have cancer, which was very much, मतलब बहुत अजीब सा था. In 2 days how it could happen? सिर्फ 2 दिन में ऐसे कैसे हो सकता है कि जो आदमी 2 हफ्ते में मरने वाला है, वो एक इंजेक्शन लगा के 2 दिन में कैसे ठीक हो गया, समझ में आया नहीं. So doctor was also happy, this man was also happy. He went home and 8-10 महीने इस तरह से निकल गए. Now, one day after 8 or 10 months, the same person, when he was reading newspaper, he got this, he got to see that article where it was mentioned that this particular injection which he had taken does not have any effect on the cancer patients. मतलब ये जो injection जो उस आदमी ने लिया था Mr. Wright ने, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है cancer patients पे. He goes to the doctor. थोड़े मतलब 1-2 दिन के बाद में कहता है कि मैंने इंजेक्शन तो वो कुछ बेकार का था, कुछ फायदा नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है, आई फील दैट माय कैंसर इज, मुझे वापस आ गया कैंसर. ओके, सो डॉक्टर इज, बिकॉज एक्चुअली उसको लम्प्स थोड़े थोड़े दिखने लग गए थे. नाउ दिस पर्सन, डॉक्टर सेड ओके चलो लेट मी टेक योर टेस्ट लेते हैं. एक्चुअल में उसको कैंसर वापस आ जाता है. नाउ कुछ नहीं कर सकते, वापस जाता है, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है चलने दो करके. अब this man is very shattered, very sad. अब फिर से ना, I'm just try to understand the story, and the story मतलब ये जो सच में हुआ जो कहानी है 1952 का अमेरिका में. अब ये परेशान है पेशेंट कि मैं तो इतने अच्छे से ठीक हो रहा था, now suddenly this injection is not working, this that and all. He was very upset. फिर नया एक प्रोडक्ट आता है, जब एवरी प्लेस में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं ना, तो वैसे एक और इंजेक्शन, एक और सब मेडिकेशन लॉन्च हुआ, अनदर इंजेक्शन. तो ही सेड मुझे वही चाहिए. नाउ द डॉक्टर थॉट कि कुछ गड़बड़ है, because how it is possible that in 2 days a person who was actually suffering from the last stage of cancer, after taking the injection 2 days में वो ठीक हो गया, and after 8 or 10 months he's again coming back and वापस उसको कैंसर हो गया.
अब डॉक्टर अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी. आप लोगों ने इफ यू गूगल सर्च ना व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, अ ब्यूटीफुल साइंस, you'll get to understand. और ये हम सब में है. ओके वो अमेरिकन है करके वो अलग नहीं है. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम सारे इंसान हैं, हमारे अंदर वही सारे सिस्टम है. भले कलर हमारा थोड़ा सा कम है उन लोगों से, बट वही हार्ट है, वही इंटेस्टाइन है, वही पैनक्रियाज है, उसी जगह में है, कहीं और जगह पे नहीं है. जस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस, आवर पैनक्रियाज आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द थ्रोट एंड और क्या कहते हैं ब्रेन इज नॉट गोइंग टू बी ऑन आवर नी. ऐसा नहीं, सब सेम है. अब ये डॉक्टर सोचता है कि समथिंग हैज टू बी डन. नाउ व्हाट द डॉक्टर सेज कि वी हैव द मेडिकल साइंस हैज लॉन्च्ड अ न्यू इंजेक्शन जिससे वापस कैंसर रिवर्स होता है. सो आई विल गिव दिस न्यू इंजेक्शन, मैं आपको लगाता हूँ. सो नाउ दिस डॉक्टर ही गोज इनसाइड एंड अपने इंजेक्शन में जो उनका जो सिरिंज होता है उसमें ही एक्चुअली पुट्स डिस्टिल्ड वाटर, खाली डिस्टिल्ड वाटर डाल के इस आदमी को सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है. After some days the man comes back, he is very happy, he says कि मेरे lumps गायब हो गए, दिख नहीं रहे करके. टेस्ट करते हैं सब नॉर्मल. Now there, उस टाइम पे मैं कह रही हूँ it's in 19 early 50s where this concept of neuroplasticity started and lot of research was done on this. And अभी in today's time इतना ज्यादा advanced research neuroplasticity पे हुआ है. So basically neuroplasticity is what I think that is going to happen in simple words. Okay, now why I give told this particular ये narration मैंने इसलिए किया so that we understand our relationship with food. Because food, जैसे कैंसर तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बीमारी है, हम लोग वो बात अभी नहीं कर रहे, हम फूड की बात कर रहे हैं. When it comes to food, food is the most important thing which a person should have to, मतलब जैसे कहते हैं हमारा जो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए वी आर हैविंग फूड. जब हम फूड की बात करते हैं ओके, देयर इज अ रिलेशनशिप विद आवर साइकोलॉजी. हमेशा yesterday those who attended the gut brain relationship, all of you now you know that what is the relationship between our gut and brain. So ये वाला हमारा first brain है, हमारा gut जो है second brain है. So जब हमारा gut मतलब हमारा जो digestive system है, when we are not eating, when we are eating something which is actually not good for our stomach, the linings जो हमारी intestinal linings है वो filter नहीं कर पाती है अनवांटेड चीज को. और वो अनवांटेड चीज जब उस फिल्टर के अंदर हमारे इंटेस्टिनल वॉल के अंदर जब घुस जाता है, विच इज समथिंग एलियन. जब एलियन अगर चोर घर के अंदर घुसेगा तो व्हाट वी डू, हम लोग इमीडिएटली पुलिस को कॉल करेंगे, नेबर्स को बुलाएंगे, फैमिली मेंबर्स को कॉल करेंगे दैट आई एम इन ट्रबल. तो सेम वे the intestine, the gut is giving signal to our brain that some alien has come और मुझे बचाओ. तो उस टाइम पे वो सारे जो केमिकल्स जो रिलीज करता है हमारा ब्रेन, उसकी वजह से लॉट ऑफ लाइक yesterday we discussed these points, right? So when we talk about simple diet for well-being, so number one point, the thing which we have to understand is there is a deep connection between food and mood. मतलब हमारी जो साइकोलॉजी है उसका फूड के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है. ठीक है, अब किस तरह का कनेक्शन है? नाउ रिमेंबर that in abhi aaj ka like today's time if we see, so we are considering only the age group, I'm not talking about the younger people. unka to alag hi lifestyle, alag hi psychology, sab kuch food se related, sab kuch alag hai. But let us talk about ourselves, those who have crossed the age of 45 50 जिन्होंने क्रॉस कर लिया है. ठीक है, अब you will find that there are few issues. Simple, मैं छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज की बात करती हूँ, बहुत बड़े बड़े हम लोग हेल्थ इश्यूज पे नहीं जाएंगे. नंबर वन इज वेट गेन. ठीक है, आप मुझे खाली थम्स अप देते जाना या यस यस डालते जाना चैट पे. ठीक है, नंबर वन इज वेट गेन. डू यू एग्री कि आफ्टर अ सर्टेन एज वी ऑल हैव पुट ऑन वेट? ठीक है, वो हम मैक्सिमम लोग पीपल हैव पुट ऑन वेट. वेरी फ्यू पीपल you will find saying that कि मेरा वेट कम होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कम हो रहा है. आई एम ईटिंग, आई एम टेकिंग रेस्ट, एवरीथिंग इज फाइन, बट स्टिल वेट कम हो रहा है. सो नंबर वन इज द वेट इश्यूज.
सेकेंड इज द कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस, जिसमें कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस में वी इंक्लूड द मोस्ट कॉमन वन, दैट इज डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन and heart problem. So after a certain age इसको हम common मानते हैं. And another one is arthritis, that is the joint pain, right? ये common problems है. Correct? Yes or no? एक बार thumbs up कर दीजिए तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हैं. Yes, correct. ये सारी चीजें common है, right? अब हम ये जो simple सा जो हमारा problem है weight का, ये जो हेल्थ जो छोटे मोटे, इसको मैं छोटे मोटे इश्यूज ही कहूंगी. नो, डायबिटीज आई डोंट कंसिडर इट एज अ वेरी बिग disease or something, hypertension, because all these lifestyle diseases now medical science has also proved that it can be reversed. ठीक है, अब हम बात करते कि अगर ऑलरेडी मुझे हो चुका है ये प्रॉब्लम तो हम उसको रिवर्स कैसे करें, या फिर हाउ डू आई मैनेज. सो दैट मैनेजमेंट कैन हैपन थ्रू फूड. ठीक है, we are taking medications, we are not interfering with the medication because it is actually not my domain. So the doctor has told you to take medications, you will be continuing with the medication. But हम ऐसा कौन सा डाइट फॉलो करें जिससे मेरी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं that I can manage, and after a certain stage even I can reverse those problems. The living example on Get Set Up is हेमा जी, जिन्होंने एक्चुअल में उनकी डायबिटीज डॉक्टर ने कह दिया यू डोंट टेक मेडिसिन एट ऑल बाय डूइंग सिंपल थिंग्स. ओके, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं किया. मैं तो जनरल बोलते जा रही हूँ, मैंने जो बोला उसको उन्होंने फॉलो किया, फिर सिंसियरली फॉलो किया रहेगा, इसीलिए हो गया काम. ठीक है, सो लेट अस कम टू द डाइट पार्ट. Now when we talk about diet, before हम जो खाना क्या खाना है वो समझने के पहले नंबर वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप कौन से टाइम पे खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं. These two things are very important. No matter you are preparing absolutely healthy food, you are cooking, आप खुद अपने आप कुक कर रहे हो, आप सारे आपको नॉलेज है सीजनल वेजिटेबल क्या है, सीजनल फूड क्या है, ट्रेडिशनल फूड क्या है, कौन सा ऑयल यूज करना है. बट if we are not taking that good food at right time, it is not going to provide any kind of nutrition to our body. Okay, so when we talk about time, here we need to understand about the Ayurveda concept, which is called as वात पित्त एंड कफ. जैसे हमारी बॉडी, जैसे बहुत बार मैंने कहा है, हमारी बॉडी जो है ना, इट्स लाइक या तो एक पर्सन वात प्रकृति का होता है, पित्त का होता है, या कफ का होता है, विच इज कॉल्ड एज द नेचर. हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो सेम वे जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो टाइमिंग्स है सुबह से लेकर के शाम तक, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू वात पित्त एंड कफ. ओके, सो द मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग हम जब उठते हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, दैट इज द टाइम कफ का टाइम होता है. एंड देन फ्रॉम 9 AM, like 8:30, 9 AM onwards till 1:30 और मैक्सिमम 2 o'clock वो पित्त का टाइम होता है. फिर धीरे 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 पित्त जो है कम होते होते जैसे शाम होने लगती है 5 o'clock, 6 o'clock के बाद में वात का टाइम होता है. नाउ let us understand that how I am going to maintain my timings when it comes to food. So remember, if you really want to get rid of all your health issues and if you want to be healthy and if you do not have any health problem right now, future में भी आपको healthy रहना है, 100 years बिना दवाइयों के, बिना बीमारी के जीना है, which means start taking care of the time. Time कैसे होगा? Remember that the food, lunch जो होता है हमारा, that has to get over by 1 o'clock. Why 12 to 1 के बीच का टाइम होता है? क्यों 12 to 1 के बीच का टाइम? बिकॉज वो टाइम पे पित्त मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, दैट डाइजेस्टिव फायर इज वेरी हाई. जितना ज्यादा डाइजेस्टिव फायर हाई रहेगा उतना ज्यादा वी आर एबल टू डाइजेस्ट द फूड. इट्स सिंपल, यू नो. एग्जांपल, आई एम कीपिंग खीर, मिल्क ऑन द गैस and I have added rice to it. I want to make a rice kheer. तो मैं सिम में रख के गैस को लो फ्लेम में रख के continuously I am boiling it for long time. So आराम से वो धीरे धीरे पक के that rice is going to be completely cooked in that milk, right? क्यों? क्योंकि continuously वो आग जल रहा है उसमें, ऊपर हमने बैठाया है उस पतीले को, बर्तन को, right?
सेम वे वो फायर हमारा जो जलता रहता है ना पेट में, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, वो पित्त के टाइम पे इट इज वेरी हाई. सो रिमेंबर, if you really want to be very healthy, the best time to have the lunch is somewhere between 12 and 1 के बीच में हमारा लंच होना चाहिए. अगर आपका वो स्किप हो जाता है, सो मैक्सिमम, मैं तो 1:30 भी नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर भी चलो, अभी आपको बहुत, जैसे मैं देखती हूँ कुछ लोगों को बहुत लेट लेट खाने की आदत होती है. पीपल दे आर वॉचिंग ये 3 o'clock वाला न्यूट्रिशन आ रहा है, लंच खा रहे हैं, ऐसा 3 बजे का लंच. So if you have the habit of having your lunch at 2, 3, 4, which means 100% we are inviting trouble. क्योंकि हमारा पित्त जो है उस टाइम पे वो डाउन रहता है, धीरे धीरे कम होने लगता है. जितना ज्यादा हम लेट खाएंगे उतना वो डाइजेस्ट होने में मुश्किल होगी. Once the food is not digested, the undigested food is going to create problem. Why it is going to create problem? Because that will turn into toxin. Now people ask me this question, especially the seniors, they ask me this question. We are used to having food at lunch at 3 o'clock, 4 o'clock. और ये हमारा young age से ही हमारा system ही ऐसा है. Because we have never, like, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा खाना ही वैसे होता है. Why? The reason is because we take our breakfast at around 10, 10:30 and we have our lunch at 3 o'clock or 2:30 or 4 o'clock. And that's very natural and हमें कुछ नहीं होता है. या फिर अभी अभी होने लगा है. द थिंग इज बॉडी इज एजिंग. ठीक है, हमारी बॉडी की जो सेल्स डैमेज होने लगे हैं, क्योंकि हमने बहुत सालों से गलत टेक्निक यूज किया था. सो धीरे धीरे जब एज होने लगता है, बॉडी की जो क्षमता, जो कैपेसिटी होती है, कम हो जाती है उसको विथस्टैंड करने की. then the body will not accept it. Then you start saying that I have got this pain, that pain, ye problem, wo problem. So number one thing is, remember, diet se bhi zyada important hai aapke timings. If you are maintaining the right time to eat and you are very disciplined in your eating, so आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती. और अगर आपको हाथ लगा दिया बीमारियों ने तो वो भी हट जाएगा, दूर हो जाएगा. ओके, नंबर वन थिंग. Now the second point is कि instead of eating, because we are used to, हमारा mind इस तरह से set हुआ है ना कि breakfast, lunch, evening, dinner ये हमें खाना ही है. So 4 times a meal हम लोग एक दिन में खाते हैं. And now what our concept is, when we are eating these 4 times meal, everything has to be something solid, something cooked. So you just imagine, at the age of 30, when we were eating this kind of 4 times meal, उस टाइम पे हम काम भी बहुत ज्यादा करते थे. हम ऑफिस भी जाते थे, घर के भी काम करते थे, बच्चे छोटे थे, बच्चों को भी संभालते थे. सो वॉट एवर वी वर ईटिंग दैट यूज्ड टू गेट बर्न. सो वो डाइजेस्ट हो जाता था. बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फिजिकली वी आर नॉट वेरी एक्टिव, एज वेल एज मेंटल अलर्टनेस उतनी एक्टिविटी हमें है भी नहीं. ऑफिस में जब जाते हैं तो हजारों काम होते हैं, 1000 तरीके का स्ट्रेस होता है. सो नाउ वी आर नॉट लीडिंग दैट काइंड ऑफ लाइफ, राइट? सो नेचुरली समवेयर वी हैव टू पुट अ कॉमा और फुल स्टॉप व्हेन इट कम्स टू ईटिंग. सो at this particular point, stage of life, हम थोड़ा सा टाइमिंग के साथ में, हम जो मील का जो ये है ना, जैसे 4 times a meal को अगर हम सॉलिड जो मील है उसको अगर ट्वाइस अ डे कर देते हैं, which means only lunch and dinner which will be cooked food. Okay, that can be your normal, आप जो भी खाते हैं, राइस, दाल, चपाती, रोटी, जो भी आपका नॉर्मल फूड. इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, अगर हफ्ते में आप 2 बार some non-veg food you are taking, that's totally different. Okay, apart from this, हम और अलग तरीके से we can have so many things breakfast में, rather than going for every day the same kind of breakfast कि भाई इडली ही खाना है, उपमा ही खाना है, पोहा ही खाना है. बिकॉज हमारा माइंडसेट ऐसा है, ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ तो बस यही खाते रहना है. सो थोड़ा सा अगर हम वहां पे कॉमा या फुल स्टॉप लगाते हैं धीरे धीरे, एंड वी स्टार्ट टेकिंग 2 times मील, प्रॉपर मील, बाकी के टाइम पे ब्रेकफास्ट में we can go for lot of sprouts, we can go for lot of fruits, we can make twice a week ambali. मैंने बहुत बार बोला है, this is such a wonderful recipe.
आपको शुरू शुरू में वो टेस्टलेस लगेगा, बट आप उसको जैसे दाल के साथ आपने ले लिया या छोले के साथ, आप चने के साथ, आप सब्जी के साथ लेते हैं, दैट इज वेरी टेस्टी, विच इज एब्सोल्युटली हेल्दी. सो इस स्टैंडर्ड इवनिंग में भी जब भूख लगती है, तो रादर देन गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ वेफर्स और सम काइंड ऑफ दोस काइंड ऑफ स्टफ, हम जितना ज्यादा रॉ चीजें खाते हैं, रॉ मतलब वही स्मूदीज हो गए, फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, या थोड़ा सा कुरमुरा बना के खा लिया, थोड़ा सा, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है. सो व्हेन वी, सेकंड पॉइंट इज व्हेन वी स्विच फ्रॉम 4 टाइम्स अ मील टू 2 टाइम्स, लेकिन बाकी के टाइम पे हम रॉ चीजें खाते जा रहे हैं, कोकोनट वाटर पीते जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नींबू जूस पी रहे हैं. सो आप देखोगे कि यू ऑटोमेटिकली योर बॉडी इज गोइंग टू, आप देखोगे बहुत सारा डिफरेंस आपको पता चलेगा. क्योंकि राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कंटिन्यूअसली वी आर ईटिंग, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट है कि भाई 4 बार हमें खाना है. अब खाते 4 बार हम लोग खा लेते दबा के, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो कंफर्म 3 टाइम हो जाता है. फिर बहुत सारी बार ये होता है कि टाइम पास के लिए भी खाते हैं. सो एवरी टाइम रिमेम्बर दिस, हाँ ध्यान से आप सुनिएगा सब लोग, एवरी टाइम व्हेन वी आर ईटिंग समथिंग विच इज वेरी हैवी, ओके, हमें लगता है वो हैवी नहीं है क्योंकि टेस्टी होता है. सो से फॉर एग्जाम्पल अभी काजू कतली अगर सामने पड़ा हुआ है, तो चलो एक दो अच्छा लगता है खाने में. सो नॉन डायबिटिक तो बिना डरे खा भी लेते हैं, और वेट थोड़ा सा ज्यादा तो चलो बोलते हैं कोई बात नहीं खा लेते हैं. बट एनीथिंग ज्यादा जब हम लेते हैं उस चीज को, क्वांटिटी, इफ द क्वांटिटी इज मोर, सो व्हाट हैपेंस, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम will take much more longer time to digest it. मतलब क्या होता है ना, एक ज्यादा लोड आ रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, वो लोड लेने के लिए उसको उतनी ताकत भी होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी आप 20 साल पहले आप है ना दोनों हाथ में भर भर के थैली शॉपिंग करके आप लेके आते थे आराम से. बट अगर अभी आपको बोला जाए कि 10-10 किलो सारी सब्जियां फ्रूट सब लेके हाथ में चलो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज शोल्डर स्टार्ट पेनिंग, हैंड स्टार्ट पेनिंग, बिकॉज हमारी जो बॉडी पहले जैसे स्ट्रांग नहीं रही है, वीक हो गई है. उस पर हम जबरदस्ती अगर ऐसे हाथ में लेके आएंगे तो फिर शोल्डर में पेन होगा, फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस हैं, राइट. सेम वे व्हेन वी स्टार्ट हैविंग हेवी फूड, तो हेवी फूड से क्या होगा, एंड कंटिन्यूअसली व्हेन वी आर ईटिंग, सो डाइजेशन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतना लोड पड़ता है, लोड पड़ते जाता है, तो डाइजेस्ट फूड, उस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, एंड दैट्स हाउ some maximum of the food remains undigested. जैसे अनडाइजेस्टेड रहेगा, which means वो टॉक्सिन्स में क्रिएट हो रहा है. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज व्हाट, अभी जो मैंने आपको नरेट किया था जो स्टोरी उस मिस्टर राइट के बारे में, न्यूरोप्लास्टिसिटी, which means कल आज शायद मंजुश्री जी नहीं आई है, yesterday she was there, तो she had asked this question कि इतना फूड के बारे में कभी बात होता है कि उनको फूड को देख करके एकदम अच्छा नहीं लगता है, she doesn't feel like eating. Okay, now when we talk about this food has to be taken in a very बहुत हैप्पीनेस के साथ में we have to have food, right? just because food खाना है करके नहीं खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, बिकॉज हम कोई भी सी एक सिंपल सा फूड भी अगर हम खाते हैं, दैट इज गोइंग टू गिव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज व्हाई, हमने बहुत हैप्पीनेस के साथ उसको खाया. और अच्छे से अच्छा खाना भी हमें कोई न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हम परेशान होके खा रहे, चिढ़ के खा रहे, दुखी होके खा रहे. सो दैट हैप्पीनेस हैज टू बी देयर, एंड फॉर दैट ओनली वी नीड टू गिव एफर्मेशंस टू द फूड. चेंजिंग द फूड, रेगुलर फूड इनटू नेक्टर, मतलब हमारा जो नॉर्मल खाना है उसको हम अमृत कैसे बनाएं. Okay, doesn't matter if you are cooking at home or your maid cook is cooking at home, that's a different thing. But any food that comes on your table, how we are going to make it as, how we are going to convert it as a nectar, हम उसको अमृत में कैसे convert करें. When we know how to do that, automatically you will find that half of your health problems are solved. ठीक है, अब हम उसको कैसे करेंगे. सो बहुत बार हमारा हम लोगों का जो क्लास हुआ है दैट इज ऑन कलर मेडिटेशन. सो ऑलवेज रिमेम्बर, जैसे भी आप जब आप खाना खाने बैठते, कोई भी अगर आप चाय पी रहे हैं, सी स्टार्ट दोज चाय लवर्स, और इफ यू हैव स्टार्टेड टेकिंग जूस इन द मॉर्निंग, पानी आप पी रहे, एनीथिंग,
whichever, वो लिक्विड हो सॉलिड, आप कुछ भी खाने या पीने बैठ रहे हैं, डू दिस एक्सपेरिमेंट. आप सिर्फ 7 days करके देखना, 7 days में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, याद रहने लगेगा, then you see the result. Start giving positive affirmations to whatever you are eating and drinking, because that makes a lot of difference. तो हमें क्या करना है, कुछ भी जो हम खाते या पी रहे हैं, सुबह से पानी भी अगर पी रहे हैं, so everything will energize all these food and water and liquid, जिसको हम कहते हैं चार्जिंग. जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसकी बैटरी काफी टाइम के लिए रहे, सेम वे हम चार्ज करेंगे अपने फूड और वाटर को भी. वो कैसे चार्ज करेंगे? द बेस्ट वे इज, ये सिर्फ 30 सेकेंड या 60 सेकेंड, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा. आप सामने बैठते फूड को लेके, सो विजुअल, एनीवेज इंडियन फूड इज फिल्ड विथ हल्दी पाउडर, तो येलो कलर तो आपको आपकी प्लेट में दिखेगा ही, या तो दाल में होगी या सब्जी में होगा, किसी ना किसी में होगा. सो यू विजुअलाइज दैट येलो कलर, make a sound at least 3 times, sit in this apana vayu mudra. ये आपको सिर्फ 30 seconds या इस तरह से, या फिर 60 seconds आपको करना है. Just बस इतना सा काम है. I don't think half a minute or 1 minute is going to make a big difference. मतलब ऐसा टाइम नहीं है बोल के भूल जाएंगे, वो अलग बात है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है. But if you do this, this is how we charge the food and water. Because what happens many a times, again this is a very subtle thing. ओके, डाइट, अगर आपके घर पे कोई कुक आपको कुक करके दे रहा है, बहुत अच्छा फूड बनाता है वो कुक, मतलब यू वॉट एवर यू से ही इज प्रिपेयरिंग, ही और शी इज प्रिपेयरिंग, लेकिन वी नेवर नो व्हाट इज द स्टेट ऑफ हिज और हर माइंड, राइट? वो सारी एनर्जी हमारे फूड में आती है. सो लेट्स चार्ज आवर फूड, लेट्स चार्ज द वाटर विच वी आर ड्रिंकिंग, इवन द चाय, कॉफी, जूस, फ्रूट्स, सारी चीजों को हम इस तरह से चार्ज करते हैं. कैसे करना है? Just 1 minute, 60 seconds, you can sit in this particular mudra, which is called as Apana Vayu Mudra. Visualize the yellow color, because yellow color is associated with happiness. और visualize करने के बाद में हम सिर्फ 3 बार आ, एक deep breath लेके आ साउंड करेंगे, only 3 times. Okay, this will not take more than 30 to 45 seconds. तो ये आप पूरा दिन जितने बार भी, मतलब आप कुछ पीते हैं, खाते हैं, अगर आप ये करते हैं, आप सिर्फ 3-4 दिन करके देखना, एंड देन यू सी द डिफरेंस, हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम विल गेट एक्टिवेटेड. जिनको बहुत प्रॉब्लम है डाइजेशन से, आप देखोगे इतना एक्टिवेट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, this is one thing. Now moving on to the next part, that what are those simple diets which we can start having. Simple diet in the sense, number one thing is, every day, right from morning to evening, when we make a schedule of diet, the first thing in the morning which we have to take, which we have to consume, is water. वाटर, अभी थोड़ा सा सीजन चेंज होगा, दिवाली के बाद में ठंडा पड़ने लगेगा, सो अभी फिलहाल के लिए यू कैन गो फॉर द नॉर्मल वाटर. जैसी थोड़ी ठंड हो जाएगी, स्टार्ट हैविंग वार्म वाटर. सो इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, ओके, फर्स्ट थिंग शुड बी, जो मैंने बहुत बार पहले भी बोला है, रेगुलर अटेंडीज यू विल बी नोइंग दिस. फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू ड्रिंक वाटर, देन गो फॉर सम जूस. ओके, नाउ चाय की अगर बहुत लत लगी है तो इनिशियली प्रॉब्लम होगी, बट ट्राई टू गो फॉर द हर्बल टी एंड ऑल दो स्टफ. ठीक है, जूस लेना. फिर जैसा मैंने कहा, लंच जो है, प्रॉपर सॉलिड लंच नहीं लेने के बदले अगर आप स्मूदी लेते हैं, या फिर अगर आप कुछ काइंड ऑफ फ्रूट्स या स्प्राउट्स या कुछ ऐसी चीजें आप लेते हैं विच इज एक्चुअली रॉ, दैट विल बी मच बेटर. एंड मिड मॉर्निंग का जो टाइम है, because you have the tea craving, you can have tea during mid morning, that is around 10:30. That is not going to harm. But morning chai lena, and another thing is, people say that morning chai nahi lene se bathroom nahi ja sakte, we can't use the washroom unless we have tea. वो आदत पड़ गई है. So वो हमारे herbal tea से भी ये काम होता है. It's not, yes, but tea has a particular component which is activates the bowel movement. That's true. बट उसको हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पीछे कर दे उसका टाइम. ठीक है, लंच, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट दैट गो फॉर सिंपल वेजिटेरियन डाइट. अगर आप, इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन ईटर, सो मेक श्योर दैट आप जो आपकी जो नॉन वेजिटेरियन कुकिंग है ना, उसका थोड़ा सा आप उसको मॉडिफाई करें.
डोंट ईट द सेम वे विच यू आर ईटिंग अर्लियर, जैसे बहुत सारा उसमें आपने फैट डाल के कुछ ग्रेवी डाल के ऐसे कुछ बनाया, सो रादर देन गो फॉर चिकन सैलेड्स और यू गो फॉर मोर ऑफ फिश, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो लंच जैसे मैंने कहा टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर 1 o'clock यू फिनिश. उसके बाद में 3:30 4 o'clock का जब टाइम होता है, सो दैट्स नेचुरल कि बहुत लोगों को चाय पीने का मन होता है, यू कैन हैव टी. उसके बाद इवनिंग में अराउंड 5 o'clock यू गो फॉर अगेन लॉट ऑफ फ्रूट्स. मतलब 4:30-5 बजे का जो टाइम है ना, 5 बजे तक आप अच्छा खासा फ्रूट की क्वांटिटी ले सकते हैं. आप वो क्या कहते हैं ना, जो चिवड़ा होता है, वो सारी चीजें विच आर वेरी लाइट, यू नो, विच इज नॉट फ्राइड और सम काइंड ऑफ थिंग, वैसी आप चीजें ले. डिनर में अगेन गो फॉर नॉर्मल डिनर, जरूरी नहीं है हर बार सूप ही लेना है, बट यू कैन गो फॉर डिनर, बट मेक श्योर लंच एंड डिनर अच्छा खासा आपका पेट भरा हो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग में बहुत सॉलिड चीजें हम नहीं खाने वाले. ओके. सोने के पहले आप मिल्क ले सकते हैं, मिल्क अगर आपको नहीं चाहिए तो जस्ट वार्म वाटर में हनी ऐड करके ले सकते हैं. तो दीज आर स्मॉल स्मॉल चेंजेस. एंड नाउ इन स्पाइट ऑफ डूइंग दीज चेंजेस, इफ यू फाइंड दैट यू नो आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आपका डायबिटीज मतलब बढ़ता जा रहा है, आपके रीडिंग्स ज्यादा आते जा रहे हैं, योर ब्लड प्रेशर लेवल्स आर हाई, हार्ट की आपकी प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो गई है, विच मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. Something is going on, and then again you say that I'm also doing exercises, I do pranayam, I do walking, everything, फिर क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं है? That means we have to work on the neuroplasticity level. मतलब हमारे माइंड से हमें काम करना है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है. And for that the only mantra is happiness. वो happiness हमें कैसे मिलेगा? Now this is again a exercise, and this exercise is actually very difficult क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है. You will be saying कि भवानी ज्ञान बहुत अच्छा देती है हैप्पीनेस का, ज्ञान से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज व्हेन यू कम टू माई प्लेस एंड यू लिव अ लाइफ ऑफ माइंड देन यू विल अंडरस्टैंड. आप ऐसा भी कह सकते हैं, मुझे है ना कहने को टाइम नहीं लगता है, वो अलग बात है कि अभी सबको म्यूट करके रखा है, अनम्यूट किया तो आप बोलोगे, बट द थिंग इज यस आई अंडरस्टैंड, आई डू एग्री, बट इट्स माई हेल्थ, राइट? अपना खुद का हमारा हेल्थ है तो उसे ठीक रखना है. इट इज इन माई, योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स, वो मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में आपने देखा होगा ना, एंड दैट इज ट्रू. My health is in my hand, so I have to make out, you know, different ways I have to find out जहाँ पे मेरा health अच्छा रहे, and that physical health I can gain only when I am mentally healthy. और mental health हमारा कैसे आएगा? When I am happy. Happiness कहाँ से आएगा? I cannot rely on the external environment. हस्बैंड का मूड हमेशा एक जैसा नहीं होता है, बच्चे हमेशा एक जैसे बिहेव नहीं करते हैं, कभी वाईफाई नहीं रहा तो गेट सेटअप मिलता नहीं है, फिर दुखी हो जाते हैं, अरे यार मेरा वाईफाई आज काम नहीं कर रहा है, फिर बच्चे को बोलते हैं जल लगाओ लगाओ उसको रिचार्ज कराओ. तो सन एंड डॉटर इन लॉ ऑल आर बिजी इन देयर वर्क, करते हैं मम्मी करते हैं, थोड़े टाइम के बाद में इतनी क्या जल्दी है, उनका तो अपना नेट चालू है, अपने फोन से टेदर करके रखा है लैपटॉप, राइट? सो इट्स ऑलवेज, यू नो, I understand, you know, we blame, but the thing is now we have to find out that how I'm going to remain happy, and especially how I'm going to charge my food and water and the things which I'm eating and drinking. That is very important. So अब धीरे धीरे ये practice करना, yellow color visualization, making our sound, and then sitting in this apana vayu mudra, then you see the change. Okay, so ये छोटा सा एक practice है. और when we talk about diet, I feel that those regular participants, आप सबको, you are expert now in diet. I think you should come on this side now. आप सब लोग बात कर सकते हैं डाइट के ऊपर में. You all have become very expert. और आप, मैं तो जसविंदर जी, गुरविंदर जी को देख रही हूँ, नोट्स वोट्स भी बनाते रहते हैं ये, तो आप ये करें तो nothing wrong on diet part. Only thing is what goes wrong is timing and our thought process. तो इसको थोड़ा सा अगर हम सुधार लेंगे तो well-being 100%, you know, and medical science has proved that neuroplasticity करके कुछ होती है. आज सब लोग आप गूगल सर्च करके ना, बहुत अच्छा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. You will get to see so many, you know, stories. I mean stories in the sense जो facts जो आप देखोगे, कितने सारे लोगों पे ये रिसर्चेस हुए हैं.
ओके एंड स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज इस पे बहुत रिसर्च हुआ है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर नॉट एज स्ट्रांग एज इंडियंस। आप देखो कि हर छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन हो जाता है। हमारे यहाँ तो हम लोग पेरेंट्स की इतनी मार खा खा के बड़े हुए कि डिप्रेशन होने का चांस ही नहीं है। लात मार सब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। पति ने दो चार बातें भी बोल दी तो लगता है इट्स नॉर्मल, नथिंग, कुछ बड़ी बात नहीं है। यू नो आई अभी नहीं तो कुछ साल पहले मैं हस्बैंड्स कजिन स्टेज इन लंदन के पास में एक जगह वॉरिंगटन करके, देयर ही स्टेज, तो हम लोग मिलने गए थे उनको। तो हिज डॉटर इज क्वाइट ग्रोन अप, जॉब करती है। तो नॉर्मल हमारे इंडियन फादर्स होते हैं ना, जरा जोर से बोलते हैं, तो बीच रास्ते में खड़े होके बेटी को डांट रहे थे, जरा ऊंची आवाज में डांट रहे थे। तो आसपास के लोग आगे बेटी को कहते हैं कि शुड बी कॉल पुलिस, मतलब ये हाल है वहां पे। तो हम लोग क्या, तो ऐसा नहीं, हम लोग आदत है। So we are so strong. So why not we maintain that mental strength, okay? और अपने हेल्थ को अच्छा रखें। अल्टीमेटली हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज इन्वेस्टमेंट, राइट? ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था ऑन हाउ टू हैव गुड डाइट फॉर जनरल वेलबींग। तो एनी क्वेश्चंस संस्कृति ऑन द चैट? Yes, ma'am. There's one question from Gurvinder, ma'am. She has asked, can we look at yellow color also, like a yellow lid of the bottle? Yes, of course you can do that. Yeah. And you did something, this Apayan Vayu Mudra, right? Am I Yes, saying it Apana correct? Vayu. Yeah. Yes. So what is it called? So I think that's clear. This is to know. Apana Vayu Mudra. Yeah. Because Sunday we are going to have mudra therapy, so those who have not yet attended, they can attend. You'll get to know. Yeah, and there's a question by Gurvinder ma'am only. That is time for dinner, please. Dinner time, basically it should get over by 7, but then we can stretch it till 7:30. अभी चलो थोड़ा आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, अभी हम लोग कहाँ बॉम्बे और चंडीगढ़ में रहने वाले लोग कहाँ से 7 बजे सब करेंगे, गांव वालों की तरह नहीं हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं उसको 8 बजे, लेकिन उससे ज्यादा डिले मत करना, ठीक है? ओके, बाय द वे निशा जी, आई सॉ योर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आपका मैंने देखा, एकदम मस्त अच्छा था। हाफ एन आवर आई सॉ, उसके बाद मेरा नेट चला गया। एक्चुअली आई वेंट आउट तो डिस्कनेक्ट हो गया। आई सॉ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। ओके Okay. Yeah, ma'am, there's question by Shiraz ma'am. She has asked, Mudra has only little finger out. Question mark. yes, correct. Yeah. Okay. And then there's another question by Meena ma'am. If I don't have diabetes, can I take sugarcane juice regularly? Yes, of course. Best thing to detox the liver, sugarcane juice. Yeah. Any So other now question? we can go to Jyoti ma'am. She has raised her hand. Okay. I'll ask her to unmute. Jyoti ma'am was giving a big smile when I was talking. I saw. इस बात को उनकी हंसी आ रही थी, मुझे पता नहीं, बहुत हंस रहे थे, अच्छा लग रहा था देख के आपको हंसते हुए। Something you were talking about Amboli. What is that? हाँ, that is Ambali जो होता है ना, that is brown top millet होती है। So brown top millet, we have done a lot of classes on millets. Okay, so brown top, yes, ये positive millet होता है। So this brown top millet ना, if you are taking 1 cup of brown top millet, 8 cups of water we have to add to it. और इसको 8, हाँ, इसको रात को मतलब एटलीस्ट 7 to 8 hours we have to soak it. ओके, सो अच्छे से वॉश करके सोक करना है इसको। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ईदर स्टील यूटेंसिल और क्ले पॉट, इसके अलावा कोई भी दूसरी वेसल में हम इसको बना नहीं सकते। सो स्टील यूटेंसिल इज इजियर। तो हमने इसको डाला, वही पानी को फेंकना नहीं है, उसी पानी के साथ हमने स्टील यूटेंसिल में डाला, उसको चलाते रहना है। वो जब पक जाएगा, यू कैन ऐड लिटिल मोर वाटर ऑल्सो। जब वो अच्छी तरह से पक जाएगा, then you transfer this in a clay pot, clay vessel, मट्टी के बर्तन में, और उसको मसलिन क्लॉथ डाल के कवर करना है। and we have to keep it for fermentation for 6 to 7 hours. yes, ferment होने के बाद salt डालना है, सिर्फ salt. You can eat, because this is tasteless, you can eat it with your chole or with some sabzi or dal or something. So this is basically cleanses the system. How much? Just 1, हमारा नॉर्मल, जैसे आप अगर पोहा एक बोल लेते हैं इतना मीडियम साइज, उतना ही, ज्यादा नहीं, बस। ओके, Okay, sir. I think Sandeep sir can unmute himself. Yes.
Yes, Sandeep ji. Yes, ma'am. Actually, I would like to know the breakfast time, ma'am. Breakfast time. Breakfast time is between 8:30 to 9:30. 9 मतलब उसका राइट टाइम होता है 8:30 to 9 के बीच में, थोड़ा सा एक्सटेंड करके इट कैन गो टिल 9:30 बट नॉट. Ma'am, if I have eat 9:30 breakfast, then what about the mid morning actually jo tiffin like that? If the gap is very narrow, na? नहीं, that is the reason I said, because when we have breakfast at 9:30, so then भूख नहीं लगती है. So lunch, when we have that, lunch gets delayed. That's the reason I said directly you go for lunch. Lunch के पहले you can have fruits, you can have juice, you can have smoothies. Smoothies इतना heavy रहता है ना, you will not feel कि you haven't eaten poha or idli or something like that. Okay. Yeah. Ma'am, can you please suggest me a very simple non-veg diet, ma'am? Non-veg? Diet, simple non-veg diet, ma'am. Non-veg diet Only is fish and eggs, not mutton or chicken, only fish and eggs. Fish is fine. I understand you're a Bengali, so without fish, it won't happen. You know, plate bina fish ke to That's rahega. not necessary, ma'am. I actually, of course, I have fish and That is eggs, but I okay. don't like mutton or chicken. No, but Only fish and actually, eggs. no, actually, I have, because I am from Calcutta, so I know that the Bengali food is actually healthy. It's absolutely healthy, whether it is vegetarian or non-vegetarian. Even the vegetarian, the pure vegetarian diet is excellent. I mean, those times the dadis were used to make those things. Nowadays, people do not know how to cook that. But the problem is the timing of eating. It's very, very bad. And that's the reason you find that if the people who stay in Calcutta, I mean, don't take it in the other way, Sandeep ji. But the thing is, because of the time, No. It's okay. yeah, gastric That problem, doesn't matter. acidity, health issues बहुत होते हैं वहाँ के लोगों को. And the second thing, when we talk about Bengal, the thing is chai and smoking, because food is very good. The Bengali food, whether it is vegetarian, non-vegetarian, मैं कहती हूँ क्योंकि I stayed there such a long time. मेरे young age से लेकर के 30-35 years I've stayed there, so I know the diet. But the timing and the chai and smoking, that is creating harm. वो उसकी वजह से. Otherwise, the food is perfect. Okay. Ma'am, actually, last question, ma'am. Sorry to bother. Actually, ma'am, most of the people whom I met since actually this span of life, most of the people, especially they say that is non-veg food is better than the non-veg food. Why they are actually always support veg foods? What is the reason? I'll tell you the reason. A very good question. You asked this question, otherwise I would not have answered to this. Yeah, that's a great question. Why vegetarian is better than non-vegetarian food? Now the medical science researchers have also proved that veg food is far better than non-veg. The reason is, if we compare a herbivorous animal and a carnivorous animal, let us compare human beings and carnivorous animal. Let us say a tiger or lion. When you see the digestive system मतलब जो intestine जो होती है ना, उसकी length जो है carnivorous animal की, it's very short. Now when the lion or tiger eats meat, the meat which the lion or tiger is eating, it is uncooked, raw खा रहा है, ठीक है. वो raw जब खाता है, इतना short है उसका intestinal, उसका जो digestive system, intestine इतना short है, खा के it gets digested and the undigested food is thrown out from the body immediately. It doesn't take much time. Now let us consider the example of human beings. Our digestive system is very long. आप देखोगे ना फोटो, वो इस तरह से पूरी तरह से गोल गोल आप देखोगे, इसमें पूरा ये करके रखा है. It's very long. It's a chain. उसको ऐसे छोटा सा दिखता है हमारा सिस्टम. Now when a human being eats non-vegetarian food, for a human being it takes 72 hours to digest a non-veg food. मतलब एक टाइम अगर मैंने कुछ खाया non-veg, मुझे 72 hours लगेंगे उसको डाइजेस्ट करने में. बट ये जो 72 hours का पीरियड है, इसमें आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन हंग्री. मैंने वापस फिर से मैंने खाना है नॉन वेज,
तो वो खा खा के क्या होता है, it starts accumulating in the digestive system and the food starts rotting, सड़ने लगता है वो पेट में, और जितना सड़ने लगेगा वो पेट में, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, उतनी सारी बीमारियों को हम आमंत्रण देते हैं. This is the reason why it is always said that the non-vegetarian food, मतलब जितना कम होता है, it is better for good health. Okay? Yes, Yeah. ma'am. Better. Yeah. Actually, ma'am, I think the Vishuddha Shakahari food, why we say what Vishuddha Shakahari food, they don't include onion and garlic also, I think. Yeah, that Vishuddha is Shakahari. sattvic diet. Yes, we will talk on this. We'll have a class on this later. Okay, Sandeep ji. We'll move Okay, on. ma'am. Okay, ma'am. Thank you. We'll move on to Okay, Kamla ma'am. ji. Thank you. Yeah. Okay. And Yes, then Rama ji. hi, Bhavani. हाँ, yeah, yeah. हाँ, Yeah, Kamla ji. आपने शुगर कैन जूस का बोला ना, वो डेली नहीं पीना चाहिए ना? शुगर जूस, शुगर केन जूस को नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन. शुगर कैन जूस पे आपने बोला लिवर के लिए अच्छा रहता है पीने के लिए, लेकिन एवरी डे पियेंगे तो कैलोरीज बहुत हाई जाएगा ना? कैलोरीज हाई देखो थोड़ा सा जाएगा, बट नॉट कंपेयर टू द कैलोरीज विच वी गेट फ्रॉम बिस्किट्स एंड ब्रेड्स. हम इस तरह से हिडन कैलोरीज बहुत खाते हैं, पर हम शुगर केन को सोचते हैं कि वही चीनी वाली चीज है, बट दैट इज एक्चुअली वेरी हेल्दी. तो उससे उतना ज्यादा कैलोरी बढ़ेगा नहीं जितना बाकी चीजों से बढ़ता है. ओके. अच्छा. Okay. और मुझे और भी शेयर करना था, आप चाय के लिए बात कर रहे थे ना, मैं एवरी टाइम शेयर करती हूँ. सुबह की चाय छोड़ी हुई है तो 6 किलो वजन कम हुआ था. और आज भी मेरे को 11 बजे बहुत लग रहा था, सुबह स्मूदी पी थी, पेट भी भरा, फिर भी लग रहा है चाय बनाऊं, नहीं बनाई, मैंने कैंसिल कर दी. तो अभी विनिंग लग रहा है मुझे. और मुद्रा का भी आप बता रहे थे, उससे भी बहुत फायदा होता है. मेरी फ्रेंड है अभी इसमें चैट में, रीटा बत्रा, वो तो मुद्रा की क्लासेस लेती है, उसको बहुत फायदा, उसने भी वजन कम किया है. वेरी गुड, बढ़िया. Thank you for sharing your experience. Thank you. Yeah, Rama ji. Then Shiraz ji, you be ready. फिर उसके बाद, इनके बाद. हाँ, Rama ji. How long can I take Ashcot juice? Rama ji, can you be little louder? Hello. हाँ. How long can I take Ashcot juice? Yeah, Ashgord juice, 3 months continuous we can take. Then give a break for 15 days, and again you start having. Okay, since 2 months I am taking. हाँ. I lose 1.5. Yeah. चलिए, तालियां बनती है. एक ग्राम भी कम करना बड़ा मुश्किल होता है. आप लोग किलो के हिसाब से 6 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो बोल रहे हैं. बड़ी बात है. चलिए, वेरी गुड. शिराज जी. Yeah, please unmute yourself. Next, Gurvinder ji, आप भी ready रहना. हाँ. I'm ready. Unmute. 1 second. Shiraz ji. Yes. हाँ. Okay, Yeah. actually, ma'am, I had 2-3 questions. First is that when you gave the example about that person having cancer and how we used neuroplasticity to cure himself. So how can we use that to cure any of our problems? Secondly, yeah, okay, so you answer. Okay, हाँ ठीक है, आप पूछ लीजिए. हाँ. Yeah, so like I've tried that ambali thing recipe. So if I'm cooking it in that mud pot itself, so can I just put the muslin cloth on the same mud cloth? Yes. So then just remove the lid and put the cloth. That's it, right? Right. Yeah. So I'm having that. Yeah. And the third is that since I'm doing intermittent fasting, so then by the time I have my first meal, it is already like if I keep for 14 hours, it's already like 10 and all. So then obviously my lunch also becomes very late after 2:33. So what should I do? Okay. Now I'll answer the last question first. Yeah. जो आपका intermittent fasting वाला है. Now 10 o'clock, if you are 14 hours are getting over, right? So 10 o'clock, what you do is instead of having the food directly, first thing is you have fruits. ठीक है? हम intermittent fasting जब break करते हैं ना, तो best way is to have fruit. तो आप अच्छा खासा bowl fruit लेना. Then after 1 or 1.5 hours, say around 11:30, you have your lunch. मतलब proper lunch you have. ठीक है? Normal जो आप lunch खाते हैं, पूरा अच्छे से खाना आप, पूरा पेट भर के. Then night में 11:30 के बाद में 8 hours का gap you give. Then you have proper dinner. बीच में जब आपको भूख लगेगी ना, वो 2, 3, 4 बजे,
that time you go for smoothies, you go for juice, you go for fruit, something like that. So this way yours will be a perfect intermittent fasting. Okay, so dinner to have by what time? 8 is अगर okay, right? अगर आपका हाँ जैसे 11:30 हो गया तो 7:30 8 के पहले आपका डिनर हो जाएगा. Yeah, okay, fine. And first one, the neuroplasticity which you asked, this question was, it's about mind. See, let us first, ये बहुत एक छोटा सा चीज है, but this is actually very important because we always look at the physical level. Mind is very important. Mind को अगर challenge दे के if we keep it under control ना, so everything will be fine. तो उसके लिए the meditation part which is generally जो मैं करवाती हूँ ना, इसमें आपको कलर थेरेपी एंड साउंड थेरेपी एंड मुद्रा थेरेपी, बिकॉज द माइंड इज ऑलवेज, हम एक तरह से उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको सिखाते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर आवर माइंड. सो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दैट, देन कम्स द पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी आने के बाद में धीरे धीरे देखोगे इम्प्रूवमेंट आता है. ठीक है. सो हाउ मच विल क्विकली टेक अप, वी हैव गॉट 2 more minutes. Thank you. गुरविंदर जी. हाँ जी. या भवानी जी, अभी आप जो बता रहे थे कि the animals, the carnivorous and the human beings like omnivorous and herbivorous, right? So जो carnivorous है वो तो raw खाता है ना. Like ये मैंने बहुत बार सुना है कि उसका intestine small होता है, वो जल्दी से digest कर लेता है. But अभी जब मैं I was writing, so it came to my mind कि हम लोग तो cook करके खाते हैं ना, हम लोग तो raw नहीं खाते हैं. तो how it takes the same time to digest in human? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और संदीप जी दोनों बड़े अच्छे ये पूछ रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं ना, हम जब कुक करते हैं, सी let us take the example of both a vegetable and a animal. ठीक है. अब हम जब vegetable raw खाते हैं, so that raw vegetable, जैसे आपने सैलेड खाया, वो सैलेड जो हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है. ठीक है. हम जब कुक करके कोई सब्जी को खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए. क्यों? क्योंकि बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, क्योंकि उसके जो एंजाइम्स होते हैं ना, डाइजेस्ट जो इजीली होते हैं, वो सारे ब्रेक हो गए होते हैं. सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड फॉर द नॉन-वेज फूड आल्सो. एज ह्यूमन बीइंग्स वी कैन नॉट ईट रॉ मीट और रॉ जो भी है नॉन-वेज फूड हम नहीं खा सकते, वो खाने लायक होगा नहीं, राइट? तो हम उसको टेस्टी करने के लिए हम उसको पकाते हैं. हम उस नॉनवेज को भी जब पकाते हैं तो उसके भी एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होने लगते हैं. अब इस चीज को जब हम खाते हैं तो इसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड पड़ता है, उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. दैट्स द रीजन. इतना ज्यादा आप सोचो कि 72 आवर्स मतलब 3 दिन, तो वो 3 दिन क्यों लग रहा है कि हमने उसको टेस्टी बनाने के लिए बहुत पकाया, बहुत कुछ उसमें मसाले डाले. तो उसको आप है ना, इफ यू आप एक बार है ना, एक सबके पास में स्मार्टफोन होता है, जस्ट वन स्मॉल होमवर्क ऑल ऑफ यू डू. आप खाली एक है ना यूट्यूब में जाकर के क्लास 7th 8th की ना डाइजेस्टिव सिस्टम एक टाइप कर देना, यूट्यूब में आपको दिखेगा. दिस इज सो डेलिकेट. आप देखोगे ना, इतना डेलिकेट होता है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. हम उसको जब खाते हैं तो आप देखोगे ना, डर लगता है. व्हेन यू सी दैट ना, व्हेन द फूड इज एंटरिंग द सिस्टम, इतना भयानक लगता है. और हम उसको कितना टॉर्चर करते हैं एक्चुअली. वो बेचारा टॉर्चर सहता भी है, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब बीमार होने लगता है. फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है करके. ओके. Yeah, I think I have answered to your question, Gurvinder ji. Yes, I was curious to know, that's why I asked you. So thank you so much. Ma'am, there's last question in chat box, like we can take it. Just as far as my class notes are concerned, I've got so many diaries filled now, and I have made a bag out of it. और मेरा पूरा school bag बन गया है. Yeah, actually, very good. Yes, Sanskriti. Okay, yeah. So there's one question from Hannah, ma'am. She has asked, like she has read somewhere that green juice, that is bottle gourd, causes toxicity. Is it true? Even doctors advise we should not take raw juice. Yes. See, now when it comes to bottle gourd, that is लौकी, to some extent this is true. लौकी अगर खराब हुआ है तो which means वो टॉक्सिक हो जाएगा. अब हमें पता कैसे चलेगा लौकी खराब है कि नहीं है? So even if you are not making juice, अगर आप ऐसा खराब वाले लौकी से सब्जी भी बनाएंगे ना, it is toxic.
तो जरूरी नहीं कि सब्जी बन गई पक गया तो उसका सारे टॉक्सिन्स निकल गए, ऐसा नहीं है. सो ऑलवेज इट इज बेटर दैट व्हेन वी आर कटिंग लौकी, बिकॉज लौकी के साथ होता है ये प्रॉब्लम, हम उसको जब कट करते तो एक पीस मुंह में डाल के हमेशा देखना चाहिए. अगर कड़वा निकला लौकी, which means it is not good for consumption. So आप जूस या सब्जी आप कुछ भी उसका नहीं बना सकते. But 90% टाइम लौकी इज गुड. ठीक है, लौकी का जूस इज ऑलवेज गुड. एंड I know that lot of people say कि रॉ जूस नहीं लेना चाहिए, बट हम उसको अगर सही ढंग से ले रहे हैं, सही ढंग से लेना मतलब any vegetable which you're going to make juice out of it, you dip it in plain water for 1 to 1.5 hours. Everything is cleansed. जितने भी उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, जितने केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, सारा कुछ क्लीन हो गया होता है. इससे भी अगर और ऊपर जाएंगे ना, सटल लेवल पे अगर इसको देखते हैं, कितने लोगों की एनर्जी, जो खराब एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो भी साफ होती है पानी में जब उसको डुबा के रखते हैं. Then you make juice out of it and then you have it. So nothing is going to happen. Rather, it is going to be very, very healthy. Okay? Yeah. Yes, Sanskriti, I think all the questions are covered. Yes, ma'am. We can. Yeah, you can share the last slide. Yeah, I'll share my screen. Okay. So, 1 second. So this was a summary. We tried to understand between the psychology of food and good health, and some of kind the way diet we should be exploring, and how we can make food nectar, that is Amrit, by giving positive affirmations. And tomorrow's class is at 11 a.m. Saturday and Sunday we have class at 11 a.m. So tomorrow's topic is juice therapy. Sunday's topic is mudra therapy. And please do give your feedback and rate the session. And also invite your friend when you're booking for a class so that our community grows larger. And you can host an interest group and suggest a new class on help@getsetup.io. Okay. So thank you very much. And hello, Leena ji, मैंने आपको बहुत late देखा screen पे. Okay. So whenever I look at you ना, मेरे को मेरी friend ही याद आती है. बिल्कुल same to same face. I'll show her photo one day. Exactly. आप लोग ना कुंभ के मेले में बिछड़े हुए फिर sisters होंगे. चलो, thank you so much. Okay, Thank yeah. you, Sanskriti. Yes. Okay. Bye. Bye.